आपको खुद कर्मठ बनना पड़ेगा, खुद अपने पैरों पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि लाइफ में ब्लेसिंग्स ही काम आते हैं। Good afternoon. In fact, it is a pleasure to be part of this very important initiative, which is My Power Brand. The reason why this idea cropped up in my mind was when I was coaching different people from different segments of the society, specifically from the corporate world, from startups segments, social entrepreneurs, and of course corporate stalwarts like Mamta. It was always there in my mind that one of the ways in which people can transform themselves is by modeling. So modeling is a very interesting subject, and modeling is one step ahead of mirroring. As we always say, we learn by mirroring from people. If people want to be transformed and they want to reach the next level, in that case, if they have a role model whom they can model, and if this role model is somebody alive, somebody whom they can interact with, it is much more easier to transform and move on to the next level. And that is the reason that this idea cropped up, and we decided that people who come over to speak in this podcast and in this interview, in this show, will not only be talking about their journey, their story, as they are indeed power brands, but also they are giving that power to people to become brands themselves. And that is why all the more important for people like Mamta, why and what would make them really move on to the next level, and probably when they keep you as a benchmark, when they take you as a role model, what is it that they should keep in mind, and how they can transform themselves by considering somebody as good as a role model as you. So that is what we will be focusing on during this interview, and it's a pleasure to have somebody who's a corporate stalwart like Mamta on this show, and we look forward to a very interactive, engaging and interesting session. And we have with us, of course, somebody who has conducted so many interviews of personalities all over the country, across the country, who is Pragya, my esteemed colleague. And thank you so much for being with us on this show, Mamta. It's a pleasure to have you there. And I'll be now handing it over to Pragya, who will be, of course, taking us to this very, very interesting, important, insightful, and engaging journey. Thank you so much. Hello everyone, I am Pragya Jhunjhunwala, a social entrepreneur, and with me today is a stalwart, a Tejaswini, and a Prajita, Mrs. Mamta Binani. Thank you so much. Thank you, Pragya. She is a doctor, a CS, and also an NCLT professional. She was the first IBC professional of the country. She was the national president of the most esteemed institute of ICSI. Being a woman, being a mother, being a corporate, she is still doing a lot. Her heart beats for all the society. She is always into thinking of what good she can offer to the society. How can she empower people? And that is the reason why she is here with us. Thank you. To share her story with you, because she believes then when she can do it, everyone can do it. That's true. So we will hear her journey from her. So ma'am, we start with when I was researching about you, you have not only were bestowed with so many awards. So naming all the awards will be taking half of the show. So I would ask from you, if you would like to remember, which one or two awards is very close to your heart and which really tickled you up to get more and do more in life. Thank you so much for calling me in the show. Let me first do the honors by giving a big shout out for the gratitude that I have to express, because I'm sure this show is actually an elevation to the little confidence that people have. We're trying to boost confidence and self-esteem of people who really would wish to do something to the society.
So therefore, if I am playing a small little role here, I'm very happy. As you mentioned, कुछ शुरू के दिनों के जो भी prizes और prides मिलते हैं ना, वो ही हमेशा याद रहता है. So the awards that I got in my just beginning of the journey, that when I was a CS student, I was endowed with an All India Topper certificate. I was All India Wow. Topper in my intermediate examinations. That was the time when hardly people used to know about studies so much, and we used to just study because our friends were studying, or so that we used to kind of do a hide and seek with mom and dad so that we don't get married early. So that was a kind of attitude towards studies. But I was always quite good in academics. So the All India first certificate that I received from the CS Institute, I received a medal, a lot of certificates. That is Moji Ram Memorial Certificate. I remember that very well. Okay. It's almost now close to 35 years, but that's still etched in my mind. So when you were receiving that certificate, 30 years, sorry. 30 years, Yeah. 30 years, that certificate when you were receiving, what was the feeling that was going inside? So I felt I'm worth it. Yeah, I can do something. I felt that I'm not wasting my time. I felt that I am capable of doing something. Believe you me, I think that was not a certificate that I just received for my studies. It is a certificate that introduced myself to me. If I can honestly put that forward, I felt that yes, अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए कुछ कर सकती हूँ. पढ़ाई में always I was between first to 10, but लगता था ठीक है, हो जाएगा, it's okay. But when I saw that certificate, I really felt that I'm made and meant for something bigger. So I realized my potential. Wow, that is huge. So realizing our own potential is very important to move on. मैम, जब हम लोग एज अ प्रोफेशन बात करते हैं, सो मेनी women are aspiring to be professionals, बनती भी हैं, but what made you think of becoming a leader in the profession? How come that contesting in the elections and then going to be the president of the institute? Because in the span of 52 years of the CS Institute, she was the second lady president, and that is huge. So ma'am, what inspired you to go for becoming a leader of the institute? Okay, one thing I always believe is candidness and truthfulness. I'll be very honest. हमारे टाइम में ना इतना सोच के कोई काम करते नहीं थे. I am one person who always believes in one day at a time. मेरे को लगता है आज का दिन अच्छे से निकल गया, कल का कल देखेंगे. One, second is I never believe in procrastination. मेरे बुक्स रिकॉर्ड्स में आज अगर जो करना है, क्लाइंट को बोल दिया आज हो जाएगा, या खुद को बोल दिया आज करना है, तो वो आज हो जाना चाहिए, unless something very emergent comes over. So उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे चेयरमैन बनना है, बट मैंने जो भी अपनी काम की बस मैं लगी रही. और जब मैं जिस मंजिल के पास पहुंची तो मुझे लगा अच्छा भी मंजिल बहुत दूर है, because your goal posts start shifting when you're constantly working and working. So I think with me that has just happened. God was very kind, I guess, because God को लगा कि इसको empower करते हैं, she will be able to empower others. I was very honest. मैंने कभी भी ये मेरे अंदर कभी भी मैंने ये पाया नहीं है कि मुझे सीट का कभी नशा हो जाए या मुझे अहंकार हो जाए, बिकॉज मैं हमेशा यही सोचती रही और आज भी सोचती हूँ कि जिस पेड़ में थोड़े भी फल लदे हुए हैं वो झुके हुए होने चाहिए. तो आई डोंट नो मैं कब बन गई, कैसे बन गई, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने अपनी कोशिशों में और काम में कभी भी गद्दारी नहीं की. सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड मैजिकल मंत्रा दैट वी एक्चुअली गेट फ्रॉम हर इज कि अपने काम में लगे रहो, लगन से लगे रहो, एंड डेफिनेटली ईश्वर की कृपा तो होती ही है अपने सबसे प्यारे बच्चों पे जो अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं और आलस्य नहीं करते हैं. तो उनके लिए तो भगवान फिर प्लानिंग करते हैं और ज़रूरत नहीं होती है प्लान करने की कि अगले दिन क्या करना है, क्योंकि ही हैज़ हिज ओन प्लान्स एंड हम लोग तो उनके हाथ में जस्ट एक प्यादे की तरह हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कनेक्शन. So the magical mantra is getting connected and understanding that we are destined to empower people. So this is a magical mantra takeaway from whatever story she has shared with us till now. अब आगे बढ़ते हैं because आज की डेट में ममता बिनानी is a brand.
and she has not only empowered her own self, her own family, but she has empowered so many students. And now she has been empowering even corporates through restructuring, reformatting. She was one of the first, she was the first IBC professional in India. तो मैम आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, बिकॉज बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एज ए प्रोफेशन, आर यू यूजिंग एनी टेक इन इट? See, tech in the format of email, etc., yes, but tech in the form of AI, no. And I wish to do it. I have started reading about AI. मुझे ऐसा लगता था कि technology is not my cup of tea, but I've of late understood that technology is not so difficult to understand. It's just a question of mindset. So now I think we've all geared up to the mindset of acceptance of deep tech, not only tech, but even deep tech. So I'm absolutely open to that. Okay, so moving from a traditional profession to now a tech-based profession is very important. And the good thing is, and the important thing is, अपने आप को अपडेट रखना, आगे की तरफ मूव करना. मैम, हम लोग अब कुछ आपके सोशल एक्टिविटीज ये सब के बारे में जानेंगे, जैसे आप इतने सारे सोशल काम करते हैं. सो व्हाट इज द विजन यू हैव फॉर द सोसाइटी? एक खुशहाल सोसाइटी की मेरी हमेशा विजन रहती है. जब मैं सोसाइटी में हम सब हैं, अब हमारे यहाँ जो हाउस हेल्प्स आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, कुछ एक झांकी उनके लाइफ में तुरंत से देखने को मिल जाती है. आपको बहुत ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है. तब समझ में आता है. जैसे आज आप अपने परिवार में भी बात करोगे ना, तो आपकी मॉम, आपकी सास यही बोलेगी, सब कुछ ठीक है प्रज्ञा, किसी को किसी की भी जरूरत नहीं है, सरकार भी इतना काम करती है उनके लिए, एम नरेगा है, डिफेंस स्कीम्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट आपका घर, अगर खुद का घर 50-60 हजार महीने रुपए में नहीं चल रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक हाउस हेल्प का घर 7-8 हजार रुपए महीने में चल जाएगा? तो ये बहुत ही कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है जो हम एक अपनी एक दुनिया में रह रहे, बबल दुनिया में, कि उनको भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए सोसाइटी सर्वसंपन्न है. बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है. आज भी बहुत गरीबी है, बहुत मेनी पीपल आर डाउनलोडेड. So I have always felt कि if I am not able to touch many lives, which is not possible practically, I always feel कि मैं जिन लोगों का भी कर सकूं, I want to teach them fishing and not give them a fish. मतलब मेरे एकदम माइंड में स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रहता है कि कभी कर दिया वो एक अलग चीज़ है. किसी को आप अपने सबके हाथ ऐसे ही रहते हैं, भगवान करे ऐसा ही रहे, पर उसके अलावा ये है कि आप उनको एम्पावर करिए, उनकी या तो उनको शिक्षित करिए, उनको या तो कोई आप हुनर सिखा दीजिए, और ऐसा सिखाइए कि वो आजीवन उस पर काम करते रहें. तो मैं MSME डेवलपमेंट फोरम की प्रेसिडेंट हूँ. वहाँ से हम काफ़ी, और आपके सहयोग से भी, हम लोग काफ़ी माइक्रो सेक्टर्स, स्पेशली माइक्रो सेक्टर्स पे काम करते हैं, क्योंकि स्मॉल और मीडियम को फिर भी देखने वाले लोग मिल जाते हैं. मीडियम अपने पैर पे खड़ा ही रहता है, तो माइक्रो को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे MSME के फोल्ड में आओ, कैसे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करो, अपनी बैलेंस शीट बनाओ, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, गवर्नमेंट के दरवाजे पे जाके कैसे हमें कोलैटरल फ्री लोन उनको मिल, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने का क्या होता है, अपने हुनर के अलावा उनके पास क्या है. तो हम कोशिश करते हैं उनको अनसिक्योर्ड लोन दिलवा दे, कोलैटरल फ्री लोन दिलवा दे, और कहीं जरूरत है तो हम भी उन्हें हेल्प करते हैं कि आप ये पैसे हमें वापस दीजिए. और एक आपको प्रॉमिस ये करना होगा कि जैसे हमने आपको मदद की, आपको भी किसी एक की मदद करनी पड़ेगी. तो मैं चाहती हूँ कि एक सर्कुलर चलता रहे, one from another, another from several another. We have few success stories to tell you, Pragya, maybe in very, very short, because this is not a ground where we talk about it more, but just wanted to tell you through you that we are doing real work. If you all also find someone who's really looking for some empowerment, maybe as little as having a 50 square meter shop, will really help them to put that shop. Because believe you me, आप जब तक आके अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को शोकेस नहीं करेंगे, ये दुनिया बैठकर नहीं देखेगी आपकी तरफ. तो मैं उनको सिखाती हूँ कि कैसे आप अपनी चीज़ों को कमर्शियलाइज करिए, आप अपने वेबसाइट्स बनाइए, ज़रूरत है तो उनके लोगोस तैयार करके देती हूँ. तो I love doing all this actually. I am doing it very many times. तो हम लोग तो ये सब जानते ही हैं, और हम लोग काफ़ी कुछ देखते हैं कि आप एक्चुअली में वुमेन एम्पावरमेंट पे, MSME माइक्रो एम्पावरमेंट पे काफ़ी कुछ काम कर रही हैं. सक्सेस तो सभी को दिखता है कि लोग क्या अचीव कर रहे हैं, लेकिन
जब हम लोग की अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसी ऐसी घड़ियां आती हैं जब हम लोग को लगता है कि और शायद कल तक हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे. Mamta Binani Di is also a sustainability professional, and she has sustained many, I'm sure she has sustained many challenges in her life. And इसमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है जब हम लोग अपने मॉडल्स को, अपने सक्सेसफुल स्टोरीज में हम लोग ये जान पाते हैं कि क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और कैसे उन चैलेंजेस से वे निकल पाए. तो चलिए हम लोग इनसे जानते हैं. मैंने वुड यू लाइक टू शेयर सम challenge in your life when you felt ki maybe this is the end of the world, but still you were able to come out of it, and how did you do it? But actually, I lost my son in very early days of my life because I got married pretty early. उसके बाद मुझे लगा कि the world has stopped for me. मेरे को कुछ दिखता ही नहीं था. मतलब I always used to feel that the whole world is black in color. I had got blindfolded. I lost every taste, color, everything. But मुझे उसके बाद समझ में आया कि खुद को खुद ही उस चीज से मुझे निकालनी पड़ेगी. खुद को खुद ही को उभारना पड़ता है. आपको एक दो बार कोई समझा देगा, बता देगा, इतना समय किसी के पास भी होता नहीं है. तो वो एक स्थिति मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे कंपन होती है. पर मैं इतना बोलना चाहूंगी कि सबके लाइफ में हम कहीं ना आप अगर मुझे देखोगे, इनको देखोगे और बहुत सारे, और आज अभी विभोर जी थोड़ी देर पहले बोलकर गए, सबको लगेगा they are born with some special powers, they have something special in their lives. ऐसा कुछ होता नहीं है. You have to build your life for yourself. तो आपको खुद कर्मठ बनना पड़ेगा. खुद अपने पैरों पे आपको खड़ा होना पड़ेगा. और हमेशा ध्यान रखिए कि लाइफ में ब्लेसिंग्स ही काम आती है. आप कितना भी पैसे कमा लीजिए, पैसा तो सच में हाथ का धूल है. एक लॉस लगा नहीं कि आपके सारे पैसे चले जाएंगे. सो व्हाट इज इट दैट यू डू विद इट? तो आपकी अपनी सूरत कभी काम नहीं आती है. आपकी अपनी सीरत काम आती है, कोशिश काम आती है. और जिस तरह से एक लकड़हारा जब पेड़ काटने जाता है ना, तो उसकी एक्स को शार्प रख के ही जाता है, तभी वो पेड़ काट पाएगा और अपनी जीवनी जी पाएगा. उसी तरह से एज अ प्रोफेशनल और एज अ विमेन मैं आपको यही कहूंगी कि हम सबको हमेशा लगातार लगे रहना पड़ता है. कोई भी एक मौका या मोमेंट ऐसा लाइफ में आपके नहीं आएगा जब आप सोचेंगे आई एम डन, अब मुझे थोड़ी आराम करना चाहिए. आप जहां शिथिल पड़े, आपको ओवरटेक करके कोई ऐसे निकल जाएगा कि आपको आभास भी नहीं होगा, एंड यू विल फील डेसिमेटेड, you will feel finished. So I'm only going to tell you this because of my experience that as a woman or maybe as a man also, इस पे कोई फर्क नहीं है. आपको अपने टोस पे हमेशा रहते रहना पड़ेगा. दूसरी बात है that always remember, जो दिखता है वही बिकता है. तो आप कभी भी ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा कभी आप सोच सकते हैं कि कोलगेट का ऐड कब बंद हो जाएगा? नहीं सोच सकते. नहीं ना. मैगी का ऐड कब बंद हो जाएगा? नहीं. अभी भी वो इतने मशहूर है, लेकिन उनका ऐड आता रहता है. किस लिए आता है? बिकॉज मालूम है कि नजर के सामने से हटे और दुर्घटना घटी. तो उसी तरह से एज अ प्रोफेशनल और एज अ वुमेन जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको मूवमेंट में रहना पड़ेगा. और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें अब मूवमेंट में नहीं रहना है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मूवमेंट में रखिए. हमें मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को. सो देयरफॉर द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप खुद भी नश्वर हैं. ऐसा तो नहीं है कि आप अविनाशी हैं. तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करनी होगी. आपको बाकी लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो ट्रेन है वो एक स्टॉपेज में जाके हमेशा के लिए रुक ना जाए, वो अनवरत चलता रहे. एक सर्कुलर इकोनॉमी जैसे चलती है, वैसे ही चलता रहे. So taking a clue from what you have said, how do you plan to keep on your legacy? आपकी विजन क्या है आगे के लिए? What is your future? आप अपनी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल. देखिए, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी डॉटर है, वो अपना खुद वो जो चाहेगी वो करेगी. अब मेरा जो फर्म है, वैसे भी मैंने अपने पार्टनर्स को दे ही दिया है. तो मेरे पार्टनर्स, जिस उस फर्म में मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे नाम से वो लोग फर्म चलाते हैं. तो मैंने अपनी लेगेसी अपने पार्टनर्स को पूरी तरीके से दे ही दिया है और कह भी दिया है कि तुम्हें ही चलाना है, तुम्हें ही रखना है. तो आई डोंट ओनली टॉक इन वर्ड्स, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज, देखिए एक इंटरव्यू में या जीवन में, इंटरव्यू तो रहने दीजिए,
जीवन में भी ना आप जो शब्द बोलते हैं या कहते हैं या करते हैं, वो शब्द ना कहीं यूनिवर्स में जाके डिपॉजिट होता है। आप कितना भी झूठ बोल लीजिए, अब झूठ बोलते बोलते वो कभी भी सच नहीं होगा। तो आई ऑलवेज बिलीव इन द फैक्ट कि सत्यता से आप यूनिवर्स में जो भी चीजें डिपॉजिट करते हैं वो आपके पास वापस आती है। आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट, आई हैव गिवन माई फर्म ऑलरेडी टू माई पार्टनर्स, और वो पार्टनर में मेरे कोई अपने बच्चे नहीं है, लेकिन ये लोग मेरे बच्चों से भी बढ़ के हैं। तो मैं अभी भी उनको गाइड करती हूँ। तो मैंने अपनी लेगेसी दे दी है, मेरा नाम से वो लोग चला रहे हैं, तो नाम जब तक चलाएंगे तब तक है, और नहीं तो भी उनका ही है। सो आई एम ओनली सेइंग दैट कुछ भी आपका होता नहीं है। अगर आप उसको कोई भी चीज को, एंड प्लीज टेक दिस, अगर आप कोई भी चीज को एकदम अपने तक चिपका के रखते हैं ना, वो भाग जाता है। यू हैव टू गिव पीपल स्पेस टू मूव। आपको सांस लेने के लिए उनको जगह देनी पड़ेगी, और आप जैसे ही देते हैं ना, आप खुद ग्रो हो जाते हैं। आप सोचिए, अगर आपको CFO से मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो आप क्या करोगे? बोलिए, आप क्या करोगे? आप तो एक ही इंसान हो, राइट। आप दोनों में से एक ही पोजीशन पे बैठ सकते हो। तो आपको अगर ऊपर लेवल पे जाना है तो किसी ना किसी को आपको उस स्थिति पे लेके आना होगा जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ले और आप ऊपर चले जाए। तो ये हर किसी के लिए यही लागू होता है। मैं भी अगर अपना लेगेसी छोड़ना चाहती हूँ तो मुझे अपने आप को लिफ्ट खुद करके ऊपर और लेके जाना होगा, जिससे कि नीचे वाले भी और ऊपर आ जाए, तो उनकी भी ग्रोथ हो, साथ साथ फर्म की ग्रोथ हो और मेरी भी ग्रोथ हो। सो इट वर्क्स लाइक दिस ओनली। So another magical mantra, that you have to make leaders and you have to create leaders so that you can move up. So this is a very important thing again, कि आप जिस तरह अपनी लेगेसी बना रहे हैं, you are making multiplications of ममता बिनानी, अपने आप को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। That is what is empowerment, that is what is true, being a true leader. So मैम, आपका और कुछ मैसेज है यंगस्टर्स के लिए? बहुत सारे एक्चुअली यंगस्टर्स इस पॉडकास्ट को सुनेंगे। So keeping my fingers crossed, Mr. and Mrs. Youngster and Madam Youngster, I just want to tell you that there's no shortcuts to life. What I have been seeing for past few years is आप लोगों को कोई चीज़ की पता नहीं किस चीज़ की बहुत जल्दी रहती है। लगता है कि 2 मिनट नूडल है, बस फटाफट पास किए, फटाफट एकदम CSP बन जाए, कंप्लायंस ऑफिसर भी बन जाए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बैठने को मिल जाए। ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आपको अगर अच्छा कुछ करना है तो यू हैव टू गिव द टाइम फॉर दैट टू गेट कुक्ड, उसमें वो स्वाद बैठे, तभी आप अपने अंदर निखार ला पाएंगे। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हैव पेशेंस, वी हैव टू लर्न परसिवियरेंस, वी हैव टू लर्न द क्वालिटी ऑफ कंसिस्टेंसी। हम एक ही चीज़ को अगर बार बार करते हैं तो ही हम उसमें मनोरथ हासिल कर पाते हैं। तो मैंने ये चीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी इन वर्षों में देखा है। आई फेल्ट आई यूज दिस प्लेटफॉर्म टू से दैट। और लास्टली, आपका हुनर कोई ना कोई ज़रूर देख ही लेता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अच्छा काम किए जा रहा हूँ, मैं 20 लोगों में एक ऐसा ट्रेनी हूँ या एक ऐसी शख्सियत हूँ या ऐसा एक एग्जीक्यूटिव हूँ जो बहुत अच्छा काम करता हूँ, पर मुझे तो कोई देखता ही नहीं है, मुझे कोई सराहता नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। आपके जो सीनियर्स होते हैं ना, उनके 2 आंख नहीं होते, उनके 8-10 तो आंख होते ही हैं, इफ नॉट मोर। तो वो उस आंखों से और मन की आंखों से वो समझ लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और आपकी पहचान उनके नजरों में एकदम मतलब दाखिल हो जाती है। And then you have your own share of the cake. So believe you me, just be on it. I can only say, if I have to teach you anything from my life, is my consistency, nothing else. I'm not super intelligent. I believe in doing work very honestly. I'm not in a hurry to earn money. But I also know that if I work well, money is a byproduct. That will come. जाएगा कहाँ? तो कहीं जा नहीं सकता है, वो आएगा ही आपके पास। तो कोई भी चीज़ों की ना जल्दी मत करिए। एंड जस्ट द लास्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज, लाइफ को ना लाइफ की तरह थोड़ा जी लीजिए। आप लोगों को पता नहीं, ऐसा लगता है कि अगर मैं जिंदगी के भागदौड़ में घुस गया, अगर मैं हस्बैंड बन गया, या अगर मैं वाइफ बन गई, अगर मैं मदर बन गई, अगर मैं सास बन गई, तो मेरी तरक्की तो सब रुक जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ को, जो लाइफ की एक साइकिल है ना, लाइफ के साइकिल को कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिकॉज खाली आपकी लाइफ आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स की भी है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की भी है। तो आप खुद कुछ जब नहीं करते ना तरीके से, तो आपको शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है, आपके जो पूरे
कुंभ है ना, पे पूरे मदर, फादर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब डिस्टर्ब हो जाते हैं. So therefore, please understand that life really can move on even if you are playing the role of what has been given in our shastras. कि आप गृहस्थ अवस्था में भी गए, आप काम भी किए, आप बच्चे भी आपके हुए. So don't worry, believe you me, करियर कभी खराब नहीं होगा. आपको बस इतना अंदर अपने अंदर दम रखना होगा कि जब 2-3 महीना आपके करियर में ब्रेक लगा तो आप वापस अपने अंदर ऊर्जा लाके उठ जाइए. बस उतनी आपको अंदर अपनी कोशिश रखनी पड़ेगी, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है. That's what I can say, Pragya. This is really so enriching, and I'm sure that anybody who listens to her, listens to this talk, I'm sure she has already inspired millions of people already, and going forward listening to this, thousands and lakhs of people will be inspired even more to achieve success, to achieve the real value, to understand the real value of life, and to move forward to the next level in their lives. Thank you so much, Mamta. Thank you. You are always an inspiration. Thank for you, us. Vibhuji. Thank you.